Chapter 5 Major Domains of the Earth हिंदी एक्सप्लेनेशन अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र हिंदी व्याख्या As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the Earth. The surface of the Earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the Earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the Earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the Earth's surface and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is, ice, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है, पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। मनुष्य यहाँ रह सकते हैं क्योंकि पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु जैसे जीवन को बनाए रखने वाले तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह एक जटिल क्षेत्र है जिसमें पर्यावरण के तीन मुख्य घटक मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी को घेरने वाली गैसीय परतें वायुमंडल हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। पानी पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और इस क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में पानी के सभी रूप शामिल हैं, यानी बर्फ, पानी और जल वाष्प। बायोस्फीयर वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, पानी और हवा एक साथ पाते हैं, जिसमें जीवन के सभी रूप शामिल हैं। वर्ड ओरिजिन इन द ग्रीक लैंग्वेज, लिथोस मीन्स स्टोन, एटमस मीन्स वेपर, हुडा मीन्स वाटर एंड बियोस मीन्स लाइफ। कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव? शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमोस का अर्थ है वाष्प, हुडोर का अर्थ है पानी और बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप उपरोक्त का उपयोग करके शब्द बना सकते हैं? लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. There are two main divisions of the earth's surface. The large land masses are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world, figure 5.1. Are all the land masses connected with one another? The level of seawater remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहते हैं। इसमें पृथ्वी की पपड़ी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं, जिनमें पोषक तत्व होते हैं जो जीवों को जीवित रखते हैं। पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भाग हैं। बड़े भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है और विशाल जल निकायों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया के मानचित्र को देखें, चित्र 5.1। क्या सभी भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का स्तर हर जगह एक जैसा रहता है। भूमि की ऊंचाई समुद्र के स्तर से मापी जाती है, जिसे 0 माना जाता है। The highest mountain peak Mount Everest is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। सबसे अधिक गहराई 11,022 मीटर प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच में दर्ज की गई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई
उच्चतम बिंदु से कहीं अधिक है? डू यू नो? एडमंड हिलरी, न्यूजीलैंड, and Tenzing Norgay Sherpa, India, were the first men to climb the highest mountain peak Mount Everest on the planet Earth on the 29th of May 1953. Junko Tabe, Japan, was the first woman to reach the summit on the 16th of May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on the 23rd of May 1984 was Bachendri Pal. क्या आप जानते हैं, एडमंड हिलरी, न्यूजीलैंड, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, भारत, 29 मई 1953 को पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे। जुनको ताबेई, जापान, 16 मई 1975 को शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। 23 मई 1984 को सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कॉन्टिनेंट्स, Mahadweep. There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the Earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west, figure 5.1. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia, Europe plus Asia. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये बड़े जल निकायों द्वारा अलग किए गए हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दुनिया के नक्शे को देखें, चित्र 5.1, और ध्यान दें कि भूमि का बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया यूरोप से पश्चिम में यूराल पर्वतों द्वारा अलग होता है। चित्र 5.1। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप जोड़ एशिया, कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक सर्कल इसके माध्यम से गुजरता है। ये 3 तरफ से जल निकायों से घिरा हुआ है। दुनिया के नक्शे को देखें और इसे खोजें। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. The equator or 0-degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn pass. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. Look at the world map, figure 5.1. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. North America is the 3rd largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरता है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखें।
आप पाएंगे कि यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप चारों ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। विश्व मानचित्र चित्र 5.1 को देखें। आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर बहती है। अफ्रीका के मानचित्र में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती हैं, इस पर ध्यान दें। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से पनामा के इस्थमुस नामक भूमि की एक बहुत ही संकरी पट्टी से जुड़ा हुआ है। महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप को 3 महासागर घेरे हुए हैं। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? साउथ अमेरिका lies mostly in the southern hemisphere. Which 2 oceans surround it on the east and the west? The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south, figure 5.1. South America has the world's largest river, the Amazon. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. दक्षिण अमेरिका मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर इसे घेरे हुए हैं? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसकी पूरी लंबाई में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। चित्र 5.1। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीप महाद्वीप कहा जाता है। फिगर 5.2 इस्मस एंड स्ट्रेट। चित्र 5.2 इस्थम्स और जलडमरू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस्मस, इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड masses। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इस्थम्स, ये 2 भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी है। इंडिया, श्रीलंका। स्ट्रेट, इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। भारत, श्रीलंका। जल संधि, ये समुद्र और महासागरों जैसे 2 बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला पानी का एक संकीर्ण मार्ग है। Name the strait between India and Sri Lanka. Friend's answer is the strait that separates India and Sri Lanka is called the Palk Strait. भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जलडमरूमध्य का नाम बताइए। दोस्तों, उत्तर है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरूमध्य को पाक जलडमरूमध्य कहा जाता है। Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. These are named as Maitri and Bharti. अंटार्कटिका, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, एक विशाल महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। चूंकि ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये स्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्तियां नहीं हैं। अंटार्कटिका में कई देशों के अनुसंधान केंद्र हैं। भारत के भी वहाँ अनुसंधान केंद्र हैं। इनका नाम मैत्री और भारती है। हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। The Earth is called the blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms. As running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere, all comprise the hydrosphere.
More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% से अधिक भाग पानी से ढका हुआ है और 29% भूमि से। जलमंडल में सभी प्रकार का जल मौजूद है, जैसे महासागरों और नदियों और झीलों में बहता पानी, ग्लेशियरों में बर्फ, भूमिगत जल और वायुमंडल में जल वाष्प। ये सभी जलमंडल का हिस्सा हैं। पृथ्वी का 97% से अधिक पानी महासागरों में पाया जाता है और मानव उपयोग के लिए बहुत अधिक खारा है। शेष पानी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों या जमीन के नीचे है और बहुत कम प्रतिशत मानव उपयोग के लिए ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। फ्रेश वाटर 2.5%, ताज़ा पानी 2.5%, ओशंस 97.5%, महासागर 97.5%। फिगर 5.3 कंपैरेटिव साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। चित्र 5.3 महाद्वीपों का तुलनात्मक आकार। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, Australia, Antarctica. Count the squares given in figure 5.3 and answer the following. A. Name the largest continent. B. Which is larger, Europe or Australia? चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों की गणना करें और निम्नलिखित के उत्तर दें। क. सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। ख. कौन सा बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? Friends, the largest continent is Asia, and Europe is larger than Australia. दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और यूरोप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. इसलिए नीला ग्रह होने के बावजूद हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। Oceans, Mahasagar. Oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean, in order of their size, figure 5.1. The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। महासागर का पानी हमेशा गतिशील रहता है। महासागर के पानी की 3 मुख्य गतिविधियां लहरें, ज्वार और महासागरीय धाराएं हैं। 5 प्रमुख महासागर अपने आकार के अनुसार प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर हैं। चित्र 5.1। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। Look at the map and find out the location of the continents around the Pacific Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americas on the western side, and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is, India.
The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bound by Asia. In the west by Africa and in the east by Australia. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coasts of North America and Eurasia. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर हैं। मानचित्र देखें और प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये एस आकार का है। इसके पश्चिमी भाग में उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पूर्वी भाग में यूरोप और अफ्रीका हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यधिक उभरी हुई है। यह अनियमित और उभरी हुई तटरेखा प्राकृतिक बंदरगाहों और बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है। वाणिज्य की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत। महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर में यह एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और उत्तरी ध्रुव को घेरता है। ये प्रशांत महासागर से उथले पानी के एक संकीर्ण खंड द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जलमरुमध्य के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन, बेलफास्ट, डबलिन। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। The Earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. The atmosphere extends up to a height of about 1,600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean, dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases like carbon dioxide, argon and others comprise 1% by volume. Oxygen is the breath of life while nitrogen helps in the growth of living organisms. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. The density of the atmosphere varies with height. पृथ्वी गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हवा की यह पतली चादर ग्रह का अभिन्न और महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करती है और हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। संरचना, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाली इन परतों को क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जो स्वच्छ, शुष्क हवा का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य जैसी अन्य गैसें आयतन के हिसाब से 1% हैं। ऑक्सीजन जीवन की सांस है जबकि नाइट्रोजन जीवित जीवों के विकास में मदद करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि बहुत कम मात्रा में मौजूद है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी द्वारा विकिरणित गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे ग्रह गर्म रहता है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। फिगर 5.4 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। चित्र 5.4 वायुमंडल की परतें। ट्रॉपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. You know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. ये समुद्र तल पर अधिकतम होता है और ऊपर जाने पर तेजी से घटता है। आप जानते हैं, पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में समस्या होती है। उन्हें उच्च ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान भी कम होता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये जगह जगह अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में उच्च दबाव और कुछ क्षेत्रों में कम दबाव होता है। हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलती है। चलती हवा को पवन कहते हैं। बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर, जीवन का क्षेत्र। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. It is in this zone that life, that is unique to this planet, exists. जीवमंडल भूमि, जल और वायु के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में जीवन मौजूद है, जो इस ग्रह के लिए अद्वितीय है। फिगर 5.6 द बायोस्फीयर। चित्र 5.6 जीवमंडल। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forests for fulfilling our needs of wood, or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. जीवों की कई प्रजातियां हैं जो आकार में सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से लेकर विशाल स्तनधारियों तक भिन्न होती हैं। मनुष्य सहित सभी जीवित जीव एक दूसरे से और जीवित रहने के लिए जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल में जीवों को मोटे तौर पर वनस्पति जगत और पशु जगत में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के 3 डोमेन एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और किसी न किसी तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी की हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटना या कृषि के लिए ज़मीन को साफ करना ढलानों से मिट्टी को तेज़ी से हटाने का कारण बन सकता है। इसी तरह भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी की सतह बदल सकती है। उदाहरण के लिए, भूमि का जलमग्न होना, जैसा कि हाल ही में सुनामी के मामले में हुआ था।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से पानी में डूब गए। झीलों और नदियों में अपशिष्ट पदार्थों का निर्वहन पानी को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ये जीवन के अन्य रूपों को भी नुकसान पहुंचाता है। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. Carbon dioxide, CO2, is an important constituent of air. But increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों और वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन CO2 की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकता है।